میں اور پلوشا خوشحال خان کی بیٹھک میں سو رہے تھے۔ ہم دونوں کی آنکھ فائرنگ کی پرشور آواز سے کھلی۔ ایک ساتھ سینکڑوں کلیشنکوفیں گرج رہی تھیں۔ چھت پر ہونے والی ٹپ ٹپ ابھی تک موسم کے خراب ہونے کا اعلان کر رہی تھی۔ پلوشا نیند سے بوجھل آواز میں بولی، راجو آپ کا اندازہ درست نکلا، لگتا ہے جہاداد خان کے آدمیوں نے موسم کا فائدہ اٹھا کر حملہ کر دیا ہے۔ میں نے کہا 2+2=4 کی طرح اس کا حملہ کرنا بنتا تھا۔ بولی کیا خیال ہے چلیں؟ میں نے کہا اگر اپنے آدمیوں کی گولیوں سے مرنے کا شوق ہے تو چلتے ہیں۔ وہ بولی کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ کہ خوشحال خان کے آدمیوں کو باہر سے آنے والے ہر آدمی جہاداد کا آدمی ہی لگے گا۔ بولی کہہ تو صحیح رہے ہو۔ اور ہم بستروں میں لیٹے مسلسل ہوتی فائرنگ سنتے رہے۔ میں دعا کر رہا تھا کہ خوشحال خان کے آدمی سستی اور غفلت کا شکار نہ ہوئے ہوں۔ ایسا ہونے کی صورت میں انہیں بہت زیادہ نقصان پہنچتا، ورنہ دوسری صورت میں جہاداد خان کی کمر ٹوٹ جاتی۔ بوندے گرنے کی آواز میں تھوڑی تیزی آئی اور فائرنگ کی شدت میں کمی آنے لگی۔ 15-20 منٹ بعد مسلسل تڑتڑاہٹ کی جگہ اکا دکا ٹخ ٹخ نے لے لی۔ میرے پاس کنوٹ تو موجود نہیں تھا، البتہ آئی کام موجود تھا۔ وہی آئی کام آن کر کے چینل تبدیل کرنے لگا، مگر دشمن کی کوئی بات سن نہیں پایا تھا۔ یقیناً انہوں نے اپنے ریڈیو سیٹ بند کیے ہوئے تھے اور حملے کے لیے جہاداد خان نے زبانی طور پر ہی اپنے احکام جاری کیے تھے۔ ایسا کرنا اتنا مشکل بھی نہیں تھا۔ ایک مورچے سے دوسرے مورچے تک یہ بات پہنچانا بہت مشکل نہیں تھا۔ فائرنگ کی شدت میں کمی آتے دیکھ کر ہم دوبارہ سو گئے۔ صبح سویرے ہمارے پاس آتے ہی خوشحال خان مجھ سے لپٹ گیا، بولا شاباش جوان، آپ کے مشورے کی بدولت آج ہم سرخرو ہیں۔ دشمن کو 20-25 لاشوں کا تحفہ لے کر پیچھے ہٹنا پڑا۔ ہمارے 10 آدمی معمولی زخمی ہوئے ہیں، 2 کی حالت تھوڑی تشویشناک ہے، لیکن امید ہے وہ دونوں بھی جاں بر ہو جائیں گے۔ میں نے امید بھرے لہجے میں کہا انشاءاللہ۔ وہ واپس مڑ گیا، اچھا میں آپ کے لیے ناشتہ لاتا ہوں۔ ناشتہ کر کے ہم اپنے سامان کے ساتھ مورچوں کی جانب چل پڑے۔ دشمن اپنے زخم چاٹ رہا تھا، اس لیے گاہے گاہے ان کی جانب سے شدید فائرنگ شروع ہو جاتی۔ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی کہاوت بالکل ان کے حسب حال لگ رہی تھی۔ درختوں اور پتھروں کی آڑ لیتے ہوئے ہم جلد ہی اوپر پہنچ گئے۔ سب سے پہلے ہم قابل خان سے ملے۔ میرے گلے لگتے ہوئے اس نے چہکتے ہوئے کہا، ذیشان بھائی، آپ کے مشورے نے ہمیں بہت بڑی تباہی سے بچا لیا ہے۔ میں نے کہا تباہی سے بچانے والی اللہ کی ذات ہے۔ وہ عقیدت سے بولا، مگر سبب تو آپ ہی بنے ہیں۔ میں نے کہا اچھا ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ جواباً اس نے جو کچھ کہا اس کا لب لباب یہی تھا کہ ہمارے جاتے ہی قابل خان نے ہر مورچے پر بذات خود جا کر اپنے آدمیوں کو حملے کے بارے میں تیار رہنے کا حکم دیا، اور رات کو 2:30-3 بجے جب جہاداد کے آدمی ٹولیوں کی صورت میں ان کے قریب آئے تو آگے سے خوشحال خان کے تمام آدمی تیار بیٹھے تھے۔ وہ موسم کی وجہ سے انہیں غافل سمجھ کر شکار کرنے آئے تھے۔ انہوں نے شکاریوں کی طرح شکار کرنا شروع کر دیا۔ ان کے ایک دم فائر کھولنے پر پہلے تو وہ گھبرا کر پیچھے بھاگے اور پھر جوابی فائر شروع کر دیا، لیکن خوشحال خان کے تمام آدمی مورچوں میں محفوظ تھے، جبکہ جہاداد کے آدمیوں کو پتھروں اور درختوں کی آڑ لینے کے لیے بھاگنا پڑ رہا تھا۔ ان کے کافی آدمی زخمی ہوئے اور 20-25 ہلاک ہوئے۔ یہ تعداد قابل خان اندازے سے بتا رہا تھا، ہلاکتوں کی تعداد اس سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی۔ اپنے آدمیوں کی لاشیں بھی وہ پیچھے نہیں لے جا پائے تھے۔ اس تفصیل کے ساتھ اس نے مجھے یہ خوشخبری بھی سنا دی تھی کہ ان کا ایک آدمی وانا سے بیرٹ M107 کی 100 گولیاں خرید کر لے آیا ہے۔ اسلحہ فروش کے پاس بس اتنی ہی گولیاں دستیاب تھیں۔ بیرٹ کی گولیاں کافی مہنگی تھیں، لیکن اس بارے میں قابل خان نے کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ یوں بھی اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ میں اس بات سے ناواقف نہیں ہوں۔ ہماری آمد کی تھوڑی دیر بعد شہادات کے کچھ آدمی ڈھلان سے اترتے دکھائی دیے۔ اسی وقت ان کے نزدیکی 2 مورچوں سے سفید جھنڈے بلند ہو گئے۔ وہ اپنے آدمیوں کی لاشیں اٹھانے آ رہے تھے۔ قبائلی روایات کے مطابق خوشحال خان کے آدمی انہیں لاشیں اٹھانے سے نہیں روک سکتے تھے۔ گھنٹہ ڈیڑھ نیچے گھوم کر انہوں نے اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو اکٹھا کیا، پھر لاشوں اور ان کے ہتھیاروں کو واپس لے گئے۔ اس دوران دونوں جانب سے فائرنگ رکی رہی۔ ان کی واپسی کے ساتھ سفید جھنڈے نیچے ہوئے اور دشمن کی طرف سے ایک برسٹ فائر کیا گیا، جو جنگ کے دوبارہ شروع ہونے کا اعلان تھا۔ سفید جھنڈے کے لہرانے تک ہم مچان والی جگہ پر پہنچ گئے تھے۔ پلوشا کسی قیمت پر بھی میرے مچان پر چڑھنے پر راضی نہیں تھی۔ اس کی ضد دیکھتے ہوئے خوشحال خان اور قابل خان نے بھی اصرار نہیں کیا تھا۔ میں البتہ کچھ دیر سمجھاتا رہا، مگر جب وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گئی تو مجھے بھی چپ سادھنا پڑی۔ میں مغربی جانب ایک جگہ دیکھنے لگا۔ وہاں سے جہاداد کے مورچے کا فاصلہ ناپنے پر تقریباً 2300 میٹر نظر آیا، گویا بیرٹ کی کارگر رینج سے بھی کافی زیادہ تھا۔ کیونکہ جب بھی کوئی سنائپر نیچے سے بلندی کی طرف یا بلند مقام سے نیچے کی طرف فائر کرتا ہے تو وہ ہدف کی براہ راست پڑھی جانے والی رینج نہیں لگاتا، بلکہ افقی رینج لگاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اسے ہدف چاہے وہ نیچے ہو یا اوپر، اس کا زاویہ درکار ہوتا ہے کہ سنائپر سے ہدف کی بلندی یا گہرائی کا کتنا زاویہ بن رہا ہے، اور پھر اس زاویے اور فاصلے کو ایک مخصوص تناسب سے جمع تفریق کرنے سے مطلوبہ رینج معلوم ہوتی ہے۔ اس وقت ہدف کا فاصلہ 2300 میٹر بن رہا تھا، جبکہ ہدف ہم سے قریباً 35 ڈگری بلندی پر تھا۔ فارمولے کے مطابق مجھے 1875 میٹر کا رینج لگانا چاہیے تھا۔ درخت پر بنی مچان پر یہ فاصلہ 1850 میٹر تک ہو جاتا، لیکن وہاں جانے
چلانے की पलवशा की इजाजत नहीं थी। मजबूरन वहीं से फायर करना पड़ रहा था। कामयाबी की उम्मीद कम ही थी, लेकिन दुनिया उम्मीद पर कायम थी। जहांदाद अभी तक वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उम्मीद थी कि जल्द ही वो मैदान जंग का जायजा लेने के लिए वहां आ मौजूद होता। फासला वगैरह नाप कर मैंने राइफल के साथ सारी जरूरी कार्रवाइयां की और जहांदाद के इंतजार के लिए वहीं लेट गया। काबिल खान और खुशहाल खान वहीं बैठ गए थे। मचान पर चढ़ने के लिए मेरी और पलवशा की अच्छी खासी तकरार हुई थी, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। अजीब बात थी कि जब से हमारे दरमियान कौलो करार हुए थे, हमारे झगड़े बढ़ गए थे, लेकिन इन झगड़ों की वजूहात में एक दूसरे का ख्याल रखने का जुनून शामिल था। गो हम दोनों एक दूसरे पर जरा भी आंच नहीं आने देते थे। वो पलवशा जो मेरी नजर में एक तरबियत याफ्ता कमांडो से कम नहीं थी, मुझे मोम और कांच की गुड़िया दिखाई देती जिसने हल्की सी आंच से पिघल जाना था या हल्की सी चोट से कई टुकड़ों में बिखर जाती। इसी तरह मेरे जैसा स्नाइपर पलवशा को नन्ना बच्चा लग रहा था। काबिल खान और खुशहाल खान जैसे जहांदीदा सरदारों से मेरे और पलवशा का रवैया ओझल नहीं था, लेकिन वो मोहब्बत में होने वाले ऐसे झगड़ों से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने ना तो हमें समझाने की कोशिश की और ना उन झगड़ों को खातिर में लाते हुए नाक भून चढ़ाई। जहांदाद के इंतजार में हमने बाकी अतराफ की हरकत को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था। खुशहाल खान के आदमी भी एमुनिशन की बचत पर माइल नजर आ रहे थे। मौसम साफ हो गया था और सूरज की रोशनी कुछ ज्यादा ही तेज लग रही थी। हवा अलबत्ता काफी तेज चल रही थी। हवा की शिद्दत में मजीद इजाफा हुआ। उसी वक्त जहांदाद भी अपने मुहाफिजों के हमरा अपनी मखसूस जगह पर नमूदार हुआ। खुशहाल खान ने मुझे उसकी आमद की इत्तला दी, लेकिन मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा, पल पल समत तब्दील करती हुई हवा की वजह से गोली चलाने का मतलब गोली का जाया करना है और मैं गोली जाया करने का आदी नहीं। खुशहाल खान इस बात में सर हिलाकर खामोश हो गया। हवा ने एक बार फिर बादलों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। जहांदाद चंद लम्हे वहीं खड़े होकर दूरबीन से अतराफ का जायजा लेता रहा और फिर पीछे हट गया। 12 बजे के करीब हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। मैंने राइफल को प्लास्टिक के मखसूस कवर से ढांप दिया। तेज चलने वाली हवा बादलों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी पूरी करके आराम करने पर माइल नजर आ रही थी और फिर बादल जोर से गरजे और हवा एकदम साकिन हो गई। बारिश के कतरों ने गिरने की रफ्तार बढ़ाई। उसी वक्त जहांदाद खान एक बार फिर अपनी मखसूस जगह पर नमूदार हुआ। उसके एक मुहाफिज ने उसके सर पर छतरी तानी हुई थी। काबिल खान ने आंखों से दूरबीन लगाए हुए मुझे आवाज दी, जीशान भाई, लेकिन मैं उसकी आवाज देने से पहले राइफल की तरफ बढ़ गया था। पलवशा ने फौरन राइफल पर पड़ा प्लास्टिक का कवर लपेटा और मैं राइफल के पीछे लेट गया। राइफल पर 1850 की रेंज लगी हुई थी। अगर मैं रिवायती शिस्त लेता तो गोली ने यकीनन नीचे लगना था, क्योंकि हदफ 20-25 मीटर दूर था। मैंने अपने अंदाजे से शिस्त को चंद मिलीमीटर ऊपर उठाया। बादलों की वजह से सूरज गायब था और रोशनी बिल्कुल फायर के मुवाफिक थी। उसी तरह हवा ने रजाकाराना तौर पर रुक कर मुझे कामयाब होने का मौका फराहम कर दिया था। अब बस जहांदाद की मौत के वक्त का तयन होना बाकी था। अगर उसके सांस पूरे थे तो मेरी महारत का एक और सबूत सामने आ जाता, और अल्लाह पाक के नजदीक उसकी जिंदगी के दिन बाकी थे तो मेरी महारत, सूरज की रोशनी की मुवाफिकत और हवा का रुकना किसी काम नहीं आ सकता था। यूं भी मैं वहां अपने मुल्क की हिफाजत की गरज से लेटा था। दुश्मनों को निस्तो नाबूद करने और हक का बोलबाला करने के लिए वो तकलीफें और सख्तियां बर्दाश्त कर रहा था, जबकि जहांदाद बदी का नुमाइंदा था। मुल्क दुश्मन होने के साथ वो इस्लाम का भी दुश्मन था कि इस्लाम कभी बेगुनाहों के खून से हाथ रंगने की इजाजत नहीं देता। ना इस्लाम नशा व अशिया के फैलाव का कारोबार करने को अच्छा समझता है, और सबसे बढ़कर के यहूद व हुनूद के यार को इस्लाम उन्हीं के अंजाम की खुशखबरी सुनाता है। राइफल पहले से कॉक थी, रेंज लगी हुई थी, दोपाई अच्छी तरह जमीन में गड़ी थी। बस शिस्त लेकर ट्रिगर दबाने की देर थी। अपने सारे तजुर्बे को बुरुए कार लाते हुए मैंने सांस रोका और एकदम ट्रिगर को दबा दिया। ठक की आवाज के साथ मेरे कंधे ने बैरेट M107 के बट का दोस्ताना धक्का महसूस किया। ये धक्का मुझे एक प्यार भरी थपकी की तरह महसूस हुआ। उसके साथ ही मैंने आंखें बंद करके अपना सर बैरेट के बट पर टेक दिया। कामयाबी की नवीद मुझे खुशहाल खान और काबिल खान के नारों से मिली। खुशहाल खान ने कुर्बान शम जवाना और काबिल खान ने SS जिंदाबाद की सदा बुलंद की थी, जबकि पलवशा उन दोनों की परवाह किए बगैर मुझसे लिपट गई। काबिल खान ने जोर से गला खनकार कर गोया पलवशा तक अपना बाज़ाब्ता एहतजाज पहुंचा दिया था, लेकिन वो पलवशा ही क्या जो किसी को दरखौर एतना समझती। 4 सीजन होटल की छत पर यहूदी ब्रेन वेल्स को कामयाबी से निशाना बनाते वक्त जेनिफर ने भी इसी तरह का इजहार किया था, लेकिन उस वक्त हमने फौरी तौर पर वो जगह छोड़ना थी, इसलिए वो जल्द ही पीछे हो गई थी। इसके बरक्स पलवशा को कोई जल्दी नहीं थी। जिस जगह हम मौजूद थे वहाँ हमारे अकब और मशरकी जानिब काफी घनी झाड़ियां मौजूद थीं, जबकि सामने और मगरबी जानिब से दुश्मन की गोली वहां तक आने का इम्कान नहीं था। इसलिए मैं बेधड़क खड़ा हो गया। खुशहाल खान ने आगे बढ़कर मेरे हाथ चूम लिए थे, जबकि काबिल खान मुझे अपने बाजुओं के घेरे में लेकर मेरी पीठ थपथपाने लगा। अचानक आई कौम से दुश्मन के किसी कमांडर की चीखती हुई आवाज बरामद हुई। वो तमाम लोग जहांदाद खान की हलाकत की खबर सुनाने के साथ हमले के लिए तैयार होने का हुक्म दे रहा था। उसकी बात सुनते ही खुशहाल खान फौरन अपने आदमियों को चौकन्ना करने लगा। तमाम लोग सुन लें,
जहादात खान को हमने कत्ल कर दिया है और अब दुश्मन हमला करने आ रहा है। याद रखना आज मौका है। दुश्मन की तादाद में खातिर खा कमी करके उसकी अददी बरतरी के गुरूर को खत्म कर दो। वक्फे वक्फे से हम तैयार हैं की आवाजें सेट से उभरने लगी। बारिश तेज हो गई थी। पलवशा बैरेट को खोलकर उसके वाटरप्रूफ थैले में मुंतकिल कर चुकी थी। हमारा बाकी सामान यूं भी खुशाल खान के मोर्चे में पड़ा था। हम दरख्तों की आड़ लेते उस मोर्चे की तरफ बढ़ गए। पलवशा ने राइफल के थैले को उठाना चाहा, मगर मैंने जबरदस्ती उससे ले लिया। वो भी झगड़ा किए बगैर अपनी क्लैशनकोफ संभाल कर मेरे आगे चल पड़ी। खुशाल खान और काबिल खान उससे भी आगे थे। उसी वक्त बारिश में मजीद तेजी आई। मूसलाधार बारिश ने हमें 1 मिनट में भिगो दिया। अपनी क्लैशनकोफ मैंने उल्टी करके अपने कंधे से लटका ली थी। मौसम की मुनासिबत से तमाम ने अपने हथियारों के लिए मजबूत प्लास्टिक के कवर साथ रखे हुए थे। खुले कपड़े भीग कर पलवशा के बदन से चिपक गए थे। मैंने फौरन अपने गले से लिपटी हल्की चादर उतार कर उसे ओढ़ा दी। वो भी शरारती अंदाज में बोली, कितना ख्याल करते हो। मैंने फौरन कहा, पता है मेरी सारी जिंदगी मचानों में गुजरी है। आज तुमने खामखा की जिद करके मुझे मचान पर चढ़ने नहीं दिया। इसकी वजह से मेरा निशाना खता भी हो सकता था। उसने मुंह बनाया, हुआ तो नहीं ना। और फिर ये भी तो देखो कि नीचे फायर करने की वजह से तुम्हें कितना फायदा पहुंचा। मैंने कहा, कौन सा फायदा। जवाबन उसने मुझे देखकर आंख दबाई। उसने हसरत भरे लहजे में कहा, पता नहीं वो दिन कब आएगा राजू। आप सरदार चाचा को कहकर मुझसे निकाह के 2 बोल पढ़वा लो। जब ये बात यकीनी है कि आपने मुझे अपनाना है और मैंने भी इस मामले में किसी की परवाह नहीं करनी, तो फिर इंतजार किस बात का। मैंने कहा, इसमें इतनी जल्दी भी क्या है। मैं तो चाहता हूँ कि सब कुछ जरा धूमधाम से हो। वो मुझे तंग करते हुए बोली, एक गरीब फौजी के पास इतनी ताकत कहाँ कि अपने ख्वाबों की शहजादी को धूमधाम मुहैया कर सके। मुझे तो लगता है कि अम्मी जान ने जो मुतालिबा रखा उसे पूरा करने के लिए भी आप चंद साल की मोहलत न मांग लें। गो मैं उस वक्त उसे कह सकता था कि मेरे पास उसकी तवक्को से ज्यादा रकम मौजूद है। 50 लाख के बकदर रकम तो मुझे अमेरिका में स्नाइपर कोर्स में पहली पोजीशन हासिल करने पर मिली थी, और उसके अलावा मेरी अपनी तनख्वाह भी मेरे अकाउंट में जाती थी। घर का खर्च तो हमारी आबाई जमीन जो अब्बू जान ने ठेके पर दे रखी थी उसी से पूरा हो जाता था। घर में खाने वाले तो सिर्फ 2 ही अफराद थे। पहले माहीन और अब्बू जान थे, अब फुफो जान और अब्बू। लेकिन ये तफसील दोहराने की बजाय मैंने कहा, अगर ऐसी बात थी तो किसी दौलत वाले से मोहब्बत करनी थी, एक गरीब फौजी के पीछे क्यों पड़ गई। वो बोली, बस करो यार, जब अमीर न मिले तो गरीब पर ही इक्तफा करना पड़ता है। मैंने कहा, पलवशा तुम ये सब मजाक में कह रही हो, मगर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये ना हो मुझसे 2-3 थप्पड़ खा लो। मुझसे थोड़ा फासला पैदा करते हुए उसने कहकहा लगाया, मजाक तो खैर नहीं है। मैंने कहा, अच्छा ठहरो बताता हूँ। मैं जारहाना अंदाज में उसकी जानी बढ़ा और वो खिलखिलाते हुए भाग पड़ी। अचानक फायरिंग के तेज शोर में बारिश की टिप टिप दब गई। मुझे याद आया कि दुश्मन के कमांडर ने हमले का इंदिया दे दिया था, और पलवशा से बातें करते ये बात मेरे जहन से निकल गई थी। लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि फायरिंग दूर दूर ही हो रही है। शायद वो भी अभी तक हमले के लिए आगे नहीं बढ़े थे। 12.7 mm गन का गर्जना सबसे वाज़ेह था। मैंने घबरा कर उसे आवाज दी, पलवशा इधर आ जाओ। इस तरह पुरशोर और धड़ाधड़ फायरिंग में कोई भूली भटकी गोली भी उसका मिजाज पूछ सकती थी। मेरी घबराहट भरी चीख सुनते ही वो भागकर मेरे पास आ गई। सख्त बारिश के साथ शदीद फायरिंग भी हो रही थी। मेरी तरह खुशाल खान के आदमी भी जानते थे कि दुश्मन खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहा है। वो उनके आगे बढ़ने के मुंतजिर बैठे थे, लेकिन दुश्मन में से कोई आगे न बढ़ा। दिन का खाना हमने नहीं खाया था। दोपहर को जब बारिश हल्की हल्की बूंदाबांदी में तब्दील हो गई और दुश्मन ने अपना काफी एमुनेशन हवा में फूंकने के बाद चुप साध ली, काबिल खान हमें ढूंढता हुआ वहां आ निकला। गीले कपड़ों में मुझे सर्दी महसूस हो रही थी। वो बोला, जीशान भाई चलो बैठक में चलते हैं। मैंने वाजिबी सा इनकार किया। हमने कल रात भी बैठक में गुजारी थी। मेरा ख्याल है आज हमारा नंबर यहीं पड़ रहा है। वो मजाहिया लहजे में बोला, नहीं, मेरी छोटी बहन जहाँ बीमार हो जाएगी, और चूंकि वो अकेली जाने पर तैयार नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको साथ लेता जाऊं। मैंने पलवशा से पूछा, क्या ख्याल है। वो बोली, जहाँ आप रहेंगे मैं वहीं रहूंगी। मैं उठ खड़ा हुआ, तो चलो फिर। काबिल खान हमारा बकिया सामान साथ ही ले आया था। हम काबिल खान की मैयत में चल पड़े। हमें बैठक में छोड़कर काबिल खान घर से मेरे लिए अपने कपड़ों का जोड़ा और पलवशा के लिए खुशाल खान की नौजवान बेटी के कपड़ों का जोड़ा ले आया। पलवशा ने इनकार में सर हिलाया। मैंने लड़कियों वाले कपड़े नहीं पहनने। मैंने कहा, सुबह तक आपके कपड़े खुश्क हो जाएंगे, दोबारा अपने कपड़े पहन लेना। रात गुजारने के लिए तो ये पहन लो। मुंह बनाते हुए उसने काबिल खान से कपड़े ले लिए। आपको बड़ा शौक है मुझे जनाना लिबास में देखने का। उसका अंदाज देखते हुए काबिल खान हंसता हुआ बाहर निकल गया। कमरे का दरवाजा कुंडी करते हुए वो बोली, अच्छा मैं कपड़े तब्दील कर रही हूँ। और मैं दूसरी तरफ मुड़कर बैठ गया। काली स्याह कमीज जिसके सफेद धागे से खूबसूरत आबगीने टंगे थे, सर पर उसी रंग का कढ़ाई किया हुआ दुपट्टा ओढ़े मुझे कोई और पलवशा नजर आई। मैं मबहूत होकर उसे देखने लगा। उसने शर्माते हुए नजरें झुका ली और फिर आहिस्ता से बोली, कहीं नजर ही न लगा देना। मैं बेखुदी में चलता हुआ उसके करीब पहुंचा और फिर उसकी ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला, इतना प्यारा नहीं लगा करते। शोख और शर्मीली आंखों से मुझे घूरते हुए वो बोली, झूठा। मैंने वारफ्तगी से पूछा, किस तरह यकीन दिलाऊं। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं कुंडी खोलने दरवाजे की तरफ बढ़ गया। काबिल खान खाने के बर्तन लिए खड़ा था।
میں نے کہا شام کی اذان سے پہلے ہی لے آئے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا میں نے سوچا دن کو بھی کھانا نہیں کھا سکے تو یقیناً اس وقت بھوک لگی ہوگی۔ میں نے اقرار کیا ہاں بھوک تو لگی ہے۔ اسی وقت اس کی نظر پلوشہ پر پڑی۔ ماشاءاللہ ان کپڑوں میں تو میری چھوٹی بہن بہت پیاری لگ رہی ہے۔ کھانے کے برتن لکڑی کی میز پر رکھ کر قابل خان نے آگے بڑھ کر پلوشہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ شرما کر نیچے دیکھنے لگی۔ ہر وقت لڑکوں والے کپڑے پہننے والی کو یقیناً ان کپڑوں میں خود بھی کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ گو وہ جیسا بھی محسوس کر رہی تھی پر میں اپنی نظروں پر اختیار کھو چکا تھا۔ کھانے کے دوران بھی میں مسلسل اسی کو گھورتا رہا۔ قابل خان کھانا رکھ کر واپس چلا گیا۔ میری وارفتگی دیکھتے ہوئے وہ چاہت بھرے لہجے میں بولی شانی آپ کو کہا تو ہے کہ جلدی سے نکاح پڑھوا لو، پھر جیسے کپڑے پہناؤ گے میں پہن لوں گی۔ میں نے کہا تو نکاح سے پہلے میرا کہا نہیں مانو گی؟ بولی 1000 بار مانوں گی، میری یہ جرت کہ آپ کی بات کو ٹالوں۔ میں نے کہا تو بس ٹھیک ہے، کل سے تم اسی لباس میں رہو گی۔ وہ فوراً بولی ٹھیک ہے، کوئی اور حکم؟ ہمارے کھانا کھانے تک قابل خان چائے لے کر آیا۔ چائے کی پیالی میری طرف بڑھاتے ہوئے اس نے مشورہ چاہا ویسے آج رات بھی خطرہ تو کافی ہوگا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، مجھے نہیں لگتا، ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے، گزشتہ رات کی لاشیں وہ ابھی تک نہیں دفنا پائے ہوں گے، یقیناً اپنا مزید نقصان کرنا وہ پسند نہیں کریں گے۔ قابل خان نے کہا بھول گئے، جہادات کے قتل ہوتے ہی ان کے کمانڈر نے حملے کا حکم اسی وقت دے دیا تھا۔ اب یہ معلوم نہیں کہ انہوں نے حملہ کیا کیوں نہیں، شاید اندھیرا ہونے کے منتظر ہوں۔ میں نے کہا وہ ایک وقتی اشتعال تھا، حکم دینے والے کمانڈر کو جب دوسروں نے حقائق سے آگاہ کیا ہوگا تو اسے دوبارہ ایسا کرنے کی جرت نہیں ہوئی ہوگی۔ وہ پرسوچ انداز میں گردن ہلانے لگا، کہے تو آپ ٹھیک رہے ہیں۔ میں نے کہا اب تو لگتا یہی ہے کہ وہ 2-3 دن سے زیادہ نہیں ٹکیں گے۔ اگلی صبح ہم ناشتے سے فارغ ہو کر میدان جنگ میں جانے کی تیاری کر رہے تھے جب خوشحال خان بیٹھک میں داخل ہوا۔ اس کے عقب میں قابل خان اور چند اور معززین بھی موجود تھے۔ پلوشہ کو کمرے ہی میں چھوڑ کر میں باہر نکلا۔ تمام میرے ساتھ مصافہ کر کے صحن میں بچھی چارپائیوں پر بیٹھ گئے۔ ان کے چہروں پر چھائی سنجیدگی کسی نئے مسئلے کا اعلان کر رہی تھی۔ میں نے بیٹھتے ہی پوچھا سردار خیر تو ہے؟ خوشحال خان کی بجائے قابل خان نے جواب دیا سنوبر خان نے جرگہ بلوا لیا ہے۔ میں نے پوچھا سنوبر خان غالباً، اور میری بات مکمل ہونے سے پہلے قابل خان جلدی سے بولا سنوبر خان جہادات خان کا جانشین اور علام خیل کا نیا سردار ہے۔ میں نے کہا میرا خیال ہے یہ خوشی کی بات ہے، جبکہ آپ لوگوں کے چہروں پر چھائی سنجیدگی اس سے میل نہیں کھا رہی۔ قابل خان نے کہا جرگے کے پیغام سے پتہ چلا ہے کہ سنوبر خان نے ہم پر یہ الزام لگایا ہے کہ ہم نے پاک آرمی کے ایک فوجی کو پناہ دی اور اس لڑائی میں ہم نے آرمی کی مدد سے ان کا نقصان کیا ہے۔ میں نے صفائی دیتے ہوئے کہا میرا خیال ہے پاک آرمی کی کوئی امداد آپ کے پاس نہیں پہنچی، یوں بھی آرمی قبائل کے جھگڑوں میں مخل نہیں ہوا کرتی، زیادہ سے زیادہ آرمی قبائل کے جھگڑے میں سالس کا کردار ادا کر سکتی ہے، یوں کسی ایک قبیلے کے ساتھ مل کر دوسرے قبیلے سے مقابلہ نہیں کرتی۔ اخلاص خان نامی شخص نے شک بھرے لہجے میں پوچھا آپ آرمی کے بارے میں اتنا وثوق سے یہ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا بات میرے کہنے کی نہیں حقائق کی ہے۔ کیا آپ میں سے کسی نے پاک آرمی کو ایسا کرتے دیکھا ہے یا کسی نے سنا ہے کہ آرمی قبائل کی جنگ میں حصے دار بنی ہو؟ اس مرتبہ خوشحال خان نے اصل صورتحال میرے سامنے رکھ دی۔ سیدھی بات یہ ہے ذیشان صاحب کہ سنوبر خان آپ کی شخصیت کو درمیان میں گھسیٹ رہا ہے۔ اگر آپ کا تعلق آرمی سے ہے تو یقیناً وہ اپنے دعوے میں سچا ہے اور ہمیں آپ کو اس کے حوالے کرنے کے ساتھ مرنے والوں کا خون بہا بھی ادا کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھ پر واضح ہوا کہ صورتحال کتنی گھمبیر ہو گئی ہے۔ میں نے فوراً اپنی پریشانی پر قابو پاتے ہوئے مصنوعی قہقہ لگایا میں اور پاک آرمی، یہ بھی خوب کہی، اگر ایسا ہوتا تو آپ کے پاس پناہ لینے نہ دوڑاتا، پاک آرمی کی کسی پوسٹ کا رخ کرتا۔ خوشحال خان سنجیدہ تھا، پوسٹیں یہاں سے کافی فاصلے پر ہیں ذیشان صاحب۔ میں نے کہا سردار سیدھی بات یہ ہے کہ میرا نام ذیشان نہیں ہے، میرا اصل نام سلیم شاہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی جیب سے وہ نقلی شناختی کارڈ نکال کر اس کی جانب بڑھا دیا جو اس علاقے میں آتے ہوئے مجھے سرکاری طور پر جاری ہوا تھا۔ اسی طرح سردار کے پاس بھی ایک نقلی شناختی کارڈ موجود تھا، اس پر درج پتے کے مطابق ہمارا جو گھر بنتا تھا وہاں اگر جا کر کوئی پتہ کرنے کی کوشش کرتا تو اسے یہی معلومات دی جاتی جو میں بتا رہا تھا۔ میں نے کہا اور میرا علاقہ مردان ہے۔ وہ بولا مگر آپ کا ساتھی آپ کو راجہ ذیشان کہہ رہا تھا۔ اس حالت میں بھی خوشحال خان نے پلوشہ کے لڑکی ہونے کی بات کو اپنے تک ہی رکھا، گویا اس کے دل میں ہمارے لیے ہمدردی موجود تھی۔ میں نے کہا سردار یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ وہ بولا ہوگی لیکن جرگہ کل ہونا ہے اور ہمارے پاس آج کا دن موجود ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے دوپہر کا کھانا کھا کر اس بارے میں تفصیل سے بات ہوگی۔ اب جب کہ ساری بات کھل گئی ہے تو میں اور میری منگیتر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اخلاص خان نے سوالیہ لہجے میں پکارا منگیتر؟ میں نے کہا پلو خان کا اصل نام پلوشہ خان وزیر ہے اور اس نے لڑکے کا روپ دھارا ہوا ہے۔ میں نے جو کہانی دماغ میں ترتیب دی تھی اس کے مطابق پلوشہ کی اصلیت سامنے لائے بغیر کام نہیں چل رہا تھا۔ وہ تمام لوگ کھڑے ہو گئے۔ ٹھیک ہے 1 بجے دوبارہ اکٹھے ہوں گے، سوائے قابل خان کے باقی مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ اتنا تو میں بھی جانتا تھا کہ وہ ہماری نگرانی ضرور کروائیں گے، چاہے اس کے لیے قابل خان کو مقرر کیا جائے یا کسی تیسرے کو۔
तमाम के रुखसत होते ही काबिल खान ने कहा, बैठे ज़ीशान भाई, बल्कि सलीम भाई। मैं दोबारा चारपाई पर बैठ गया। वो इस्तरारी अंदाज में हाथ मरोड़ते हुए बोला, अगर आप समझते हैं कि सनोबर खान का इल्जाम दुरुस्त है और आप सही तरीके से अपना दिफा नहीं कर सकेंगे तो मैं आप दोनों को यहाँ से निकाल सकता हूँ। बाद में जो होगा हम भुगत लेंगे। उसे तसल्ली देते हुए मैं चेहरे पर एतमाद भरी मुस्कुराहट लाते हुए बोला, इसका फैसला आप खाने के बाद होने वाली गुफ्तगू सुनकर करना। वो बोला, तो फिर मैं भी इजाजत चाहूंगा। उसने भी वहाँ ठहरना मुनासिब न समझा। अलबत्ता हमें बचाने की बात करके उसने सारी जिम्मेदारी अपने सर लेने की जो बात की थी, उसने मुझे इतना इत्मीनान दिला दिया था कि हम दोनों अकेले नहीं थे। उसके बैठक से निकलते ही मैं कमरे की जानिब बढ़ा। पलवशा दरवाजे से सर जोड़े सारी गुफ्तगू सुन रही थी। उसके लहजे में मुझे परेशानी झलकती नजर आई। राजू, ये सब क्या हो गया है? मैंने कहा, कुछ भी नहीं हुआ। वो बोली, क्या आपका असल नाम सलीम शाह है? मैंने कहा, अगर मैं कहूँ हाँ तो? वो बोली, तो क्या, मैं आपको फिर भी राजू और शानी ही कहा करूंगी। मैंने कहा, मेरा नाम वही है जो तुम्हें मालूम है, राजा ज़ीशान हैदर। वो न जाने क्यों इतनी ज्यादा खुश हो गई। मैंने कहा, हाँ, और अब हमने एक ऐसी कहानी तरतीब देनी है जिसमें अगर हमसे अलहदा भी कुछ पूछा जाए तो हमारी बात एक ही हो। वो बोली, ठीक है, बताएं, क्या झूठ बुलवाना है? और मैं उसे तमाम तफसील बताने लगा। बीच बीच में वो किसी बात से इख्तिलाफ करके नई बात शामिल कर देती। घंटा डेढ़ घंटा लगा और हमने एक मुकम्मल कहानी तैयार कर ली। जिरगे के मुअज़्ज़िज़ बुजुर्गों के लिए 2 सजी हुई चारपाइयां रखी गई थी जिन पर मुनक्किश चादरें बिछी थी। आम लोगों के बैठने के लिए जमीन पर दरी बिछाई गई थी। दोनों कबीलों के सरदारों की चारपाइयां जिरगे के अरकान के सामने लगाई गई थी। वहीं एक चारपाई पर मैं और पलवशा भी बैठे थे। पलवशा उस वक्त लड़कों के ही लिबास में थी। जिरगे का आगाज होते ही जिरगे के सबसे बड़े मशर रुकन मलिक शामिल खान दावड़ ने सनोबर खान को अपना मुकदमा पेश करने का हुक्म दिया। सनोबर खान ने खड़े होकर मेरे जराइम की एक लंबी फहरिस्त गिनवाई, जिसमें रोशन खान, अनारगुल, कबील खान के साले खाइस्ता गुल के कत्ल के साथ कबील खान की हवेली की तबाही का जिक्र भी मौजूद था। और उसके तई ये काम करते हुए मैं अकेला नहीं था, बल्कि मेरे साथ आर्मी के और जवान भी शामिल थे। आर्मी के काफिले के खिलाफ लगाई जाने वाली घात को नाकाम बनाना, और फिर रोशन खान ने जब हमें घेरा और आर्मी हमारी इमदाद को पहुंची, ये सारी बातें उसने बड़ी तफसील से जिरगे के सामने रखी। आखिर में वो ये कह रहा था कि मुअज़्ज़िज़ मशर, हमारे लिए एक अकेले शख्स को अंजाम तक पहुंचाना कोई मुश्किल काम नहीं। फौज भी यहाँ पर हमारा मुकाबला नहीं कर सकती, बल्कि सच तो ये है कि मेरा कबीला फौज के खिलाफ कार्रवाइयों में शामिल है। हमारे लिए असल मसला हमारे वो कबायली सरदार हैं जो फौज के साथ मिलकर हमारे खिलाफ हथियार उठाते हैं। सरदार कबील खान के कत्ल के बाद अगर हमारे मुजरिमों को वशलाम का सरदार खुशाल खान महसूद पनाह न देता तो आज हमारे दोनों मुजरिम भी खत्म हो चुके होते और सरदार जहांदाद खान जैसा शेर भी जिंदा हमारे दरमियान मौजूद होता। बहरहाल जो होना था वो हो चुका है। अब अलाम खेल का नया मलिक होने के नाते मेरा मुतालिबा ये है कि सरदार खुशाल खान महसूद हमारे मुजरिमों को हमारे हवाले करें और हालिया लड़ाई में हमारे जितने आदमी शहीद हुए हैं उनका खून बहा अदा करें। अपनी बात खत्म करके वो मशर शामिल खान से इजाजत लेकर चारपाई पर बैठ गया। मशर शामिल खान ने सरदार खुशाल खान की तरफ हाथ का इशारा किया। खुशाल खान ने खड़े होकर गुफ्तगू की इब्तिदा की। मुअज़्ज़िज़ मशर, जब तक पाक फौज के साथ मिलकर जहांदाद खान मरहूम या कबील खान मरहूम के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बात है तो ये सरासर इल्जाम है और सरदार सनोबर खान इस इल्जाम को साबित नहीं कर सकता। अगर हमारे साथ फौज के जवान शामिल होते तो यकीनन इन्हें अब तक यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि हमारे गांव को चारों तरफ से सरदार सनोबर खान के लश्कर ने घेरा हुआ है और कोई भी बंदा उनके आदमियों की इजाजत के बगैर इस इलाके में दाखिल नहीं हो सकता। रह गया अपने कबीले में किसी अजनबी को पनाह देने की बात, तो उसकी इजाजत बल्कि हुक्म मुझे कबायली रिवायात देती हैं। यही बात उस दिन मैंने सरदार जहांदाद खान मरहूम से भी अर्ज की थी कि जब तक उसके मुजरिम मेरे कबीले में रहेंगे मैं उनकी हिफाजत का पाबंद हूँ। अलबत्ता जब वो मेरे कबीले की हुदूद से निकल जाएं तो फिर उनका मुझसे कोई ताल्लुक न होगा। मगर सरदार जहांदाद खान ने मेरी एक न सुनी और अपने बड़े लश्कर के जोम में मेरे कबीले का घेराव कर लिया। गोली चलाने की इब्तिदा भी उन्होंने की। मेरे 2 आदमी भी पहले उन्होंने शहीद किए, उसके बाद जवाब देना मेरा हक बनता है। इस ज़िमन में मुअज़्ज़िज़ मशर ये बात ज़ेरे नजर रखे कि 1.5 साल पहले मेरा एक दुश्मन सरदार कबील खान के यहाँ पनाह ले चुका था, जो आज भी अलाम खेल में उसका लश्करी बनकर जिंदगी गुजार रहा है। वो मेरे कबीले का दुश्मन है और जिस दिन हम में से किसी को अलाम खेल की हुदूद से बाहर नजर आया हम अपना बदला लेंगे। लेकिन हमने इस मुताल्लिक ना तो सरदार कबील खान से गिला किया और ना उसकी वजह से दोनों कबीलों के दरमियान जो माहिदा हो चुका था उस पर हर्फ आने दिया। अब उनकी बारी आने पर मैं भी सनोबर खान से इसी वसीउल क़ल्बी की ख्वाहिश रखता हूँ। इस मर्तबा सनोबर खान बराह रास्त खुशाल खान महसूद को मुखातिब हुआ। सरदार जहांदाद खान ने आपके मुजरिम को आपके हवाले करने की पेशकश की थी। खुशाल खान ने इस बात में सर हिलाया, हाँ ये सच है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। ये बात सरासर कबायली रिवायात के खिलाफ थी और मैं नहीं चाहता कि सिर्फ अपने दुश्मन की बाजियाबी के लिए अपने पुरखों की शानदार रिवायात को पसे पुश्त डाल दूं। ये बुज़दिली और खुद गर्जी की अलामत है। खुशाल खान की बात काफी सख्त थी।
सनोबर खान गुस्से होते हुए बोला, बुज़दिल कौन है ये जल्द ही पता चल जाएगा। मशर शामिल खान दावड़ ने फौरन उन दोनों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। दोनों सरदार एक दूसरे को धमकी देने या नाजेबा अल्फाज कहने से गुरेज करें। दोनों सरदार खामोश हो गए। सरदार खुशहाल खान, क्या आपके पास कोई ऐसा सबूत है जिससे साबित हो कि आपके मेहमान जीशान या SS नामी शख्स का ताल्लुक आर्मी से नहीं? इस बारे में सरदार सनोबर खान ने जो बात की है उसकी रोशनी में तो आपके दोनों मेहमान मशकूक हैं, क्योंकि दोनों ने बगैर किसी वजह के न सिर्फ सरदार कबील खान को कत्ल किया है बल्कि और भी कई ऐसी कार्रवाइयां की हैं जिनकी कोई तौजीह नहीं की जा सकती, सिवाय इसके कि आपके दोनों या कम से कम एक मेहमान फौजी है और दूसरा उसका मददगार है। और कबायली रिवायात के मुताबिक आप सरकारी अफराद को साथ मिलाकर किसी दुश्मन कबीले के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। खुशहाल खान ने कहा, मुअज़्ज़िज़ मशर, मैं अपने जवाब तफसील से दे चुका हूँ। बाकी जहाँ तक मेरे मेहमान के फौजी होने का ताल्लुक है तो ये इल्जाम एक गलत फहमी का नतीजा है जिसका तफसीली जवाब मेरा मुअज़्ज़िज़ मेहमान ही देगा। अगर आपकी इजाजत हो तो मेरा मेहमान अपने ऊपर लगे इल्जाम का जवाब देने के लिए तैयार है। मशर शामिल खान ने हाथ उठाकर मुझे गुफ्तगू की इजाजत दी। इजाजत है। मैंने खड़े होते हुए कहा, मुअज़्ज़िज़ मशर, मेरी कहानी थोड़ी तवील है और असल बात समझने के लिए जरूरी है कि मेरी तमाम कहानी को गौर से सुना जाए। इस ज़िमन में मैं जिरगे के मुअज़्ज़िज़ अफराद की कीमती तवज्जो का ख्वाहिशमंद हूँ। मेरी कहानी की इब्तिदा उस वक्त हुई जब मैं मुजाहिदीन के कैंप में जिहाद की गरज से शामिल हुआ, लेकिन बमुश्किल चंद दिन ही तरबियत हासिल कर सका हूँगा कि एक दिन तबीयत की खराबी की वजह से वक्त से पहले तरबियत के मैदान से रिहायशी कमरे की तरफ आ गया। मुझे रिहाइश के लिए जो कमरा मिला था उसमें मेरे अलावा 4 और लड़के भी थे। इन लड़कों में एक नौउम्र लड़का पलू खान भी था जो काफी अरसे से वहाँ तरबियत हासिल कर रहा था। उस दिन इत्तेफाक से पलू खान भी किसी वजह से तरबियती मैदान में नहीं जा सका। मैं जब कमरे में दाखिल हुआ तो पलू खान उस वक्त कपड़े तब्दील कर रहा था। अपने तई खुद को अकेला समझ रहा था, इसलिए उससे यूं बेएहतियाती हो गई और अंदर दाखिल होते ही मैं ये देखकर हैरान रह गया कि पलू खान लड़का नहीं लड़की है। ये भी मुझे देखकर परेशान हो गई थी, लेकिन जो होना था वो हो चुका था। मैंने उसी दिन पलू खान से उसकी वजह पूछी और उसकी वजह जानते ही मुझे उससे हमदर्दी हो गई जो बाद में मोहब्बत में ढल गई। मैंने उसे शादी की पेशकश की जो उसने इस शर्त पर मान ली कि अगर मैं उसके दुश्मन के खिलाफ उसकी मदद करूं। बस मैं तैयार हो गया। उसी दिन हम दोनों मुजाहिदीन के कैंप को खैरबाद कहकर वहां से निकल आए। हमारे पास हथियार वगैरह मौजूद नहीं थे और इतनी रकम भी नहीं थी कि हथियार खरीदते। मैंने रकम के बंदोबस्त के लिए मर्दान का रुख किया। वहां से आते वक्त मेरा करीबी दोस्त गुल खान भी मेरे हमराह था। शिकई से हम पैदल शवाल वादी की तरफ आ रहे थे कि रास्ते में वचा नराय पहाड़ी के दामन में हम पर गोलियां बरसाई जाने लगी। हम डर कर वचा नराय पर चढ़ गए। ऊपर जाकर मालूम हुआ कि इन लोगों ने फौज के 2 जवानों को घेरा हुआ है। हम खामखा वहां फंस गए थे। अब अगर हम नीचे जाकर उन्हें बताते कि हमारा ताल्लुक फौज से नहीं है तो यकीनन कोई न मानता। सर आई मुसीबत को देखकर हम फौजी जवानों के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला करने लगे और हकीकत में हमें उस वक्त ये मालूम ही नहीं था कि हमारा मुकाबला कबील खान के लश्कर से ही है। मैं लड़कपन से ही बहुत अच्छा निशानेबाज था। इत्तेफाकन कबील खान का कमांडर रोशन मुझे एक करीबी पत्थर की आड़ में लेटा हुआ नजर आया, जिसे मैंने अपने फायर के निर्गे में ले लिया। बाद में उसके माफी मांगने पर मैंने उसे छोड़ दिया था। इसी असना में वहाँ फौज की गाड़ियां आ गईं और ये भाग पड़े। बड़े अफसरों ने हमें शाबाश वगैरह देकर जाने की इजाजत दे दी। अब इस बात को बुनियाद बनाकर सरदार सनोबर खान मुझे फौजी साबित करने पर तुल गया है। हालांकि मैं कबील खान के खिलाफ सिर्फ अपनी मंगेतर पलवशा खान के कहने पर हुआ था और शायद मौजूद सरदार ये नहीं जानता कि पलवशा खान उसकी हम कौम ही नहीं हम कबीला भी है। इसका पूरा नाम पलवशा खान वजीर है। पलवशा का ताल्लुक अलाम खेल से है। उसके वालिद का नाम यामीन खान है। मैंने पलवशा की पूरी कहानी भी जिरगे के अरकान के सामने दोहरा दी। बाकी सरदार सकलैन खान के बेटे की शादी में अनारगुल को पलवशा ने इसलिए कत्ल किया क्योंकि अनारगुल वही शख्स है जिसने पलवशा के छोटे भाई को लात मारकर गाड़ी से नीचे गिराया था, जिसकी वजह से उस मासूम की मौत वाक़ हो गई थी। रोशन खान खुद उनके अपने आदमी की गोली का निशाना बना। 1-2 और कत्ल हमने अपनी जान बचाने के लिए किए थे और दिफा का हक हर इंसान को तो क्या जानवर को भी हासिल है। कबील खान की हवेली की तबाही और उसके साले खायस्ता गुल के कत्ल का इल्जाम मौजूद सरदार सनोबर खान बिल्कुल भी साबित नहीं कर सकता। ये बिल्कुल ऐसा ही इल्जाम है जैसा कि मेरा फौजी होना। मेरी तफसीली बात को तमाम ने बड़े गौर से सुना। पलवशा की लड़की होने का सुनकर हाजरीन में से अक्सरियत उसे घूरने लगी। वो सबसे बेनियाज खामोश बैठी थी। सनोबर खान खड़े होते हुए बोला, एक खूबसूरत लड़का लड़कियों की तरह लग सकता है, लड़की हो नहीं सकता। मैंने फौरन जवाब दिया, मुअज़्ज़िज़ मशर, इसका फैसला करना निहायत आसान है। कोई भी खातून पलवशा को खलवत में ले जाकर आसानी से इस हकीकत से पर्दा उठा सकती है। सनोबर खान ने फौरन पैंतरा बदला, ठीक है, मगर पलू खान है, पलवशा है या कोई तीसरी मखलूक है, इसके लड़की साबित होने पर इसका कबील खान पर लगाया गया बहतान कहाँ सच साबित होता है। यूं तो कल कला को मुझ पर बल्कि मुझे छोड़ें गुस्ताखी माफ, मुअज़्ज़िज़ मशर पर भी कोई इल्जाम लगाकर उनकी कीमती जान के दरपे हो सकता है।
उसकी बात पर खामोश बैठी पलवशा गजबनाक होकर खड़ी हो गई और जिरगा मशर की इजाजत के बगैर जज्बाती लहजे में बोली, कबीले के सरदार की हैसियत कबीले के बाप की सी होती है और कबीले की लड़कियां उसकी बेटियां होती हैं। एक बाप जब अपनी ही बेटियों पर बुरी निगाह रखने लगे और अपनी ही बेटी को जिनसी हवस का निशाना बनाकर कत्ल कर दे तो उसके वारिस किससे इंसाफ की भीख मांगे। इज्जतों के रखवाले जब लुटेरे बन जाते हैं तो लुटने वाले बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कबील खान ने न सिर्फ मेरी बहन सबू गुमाए को अपनी हवस का निशाना बनाया बल्कि वो मेरे भाई, बाप और बहन का कातिल भी था। ये आज से 9-10 साल पहले का वाकया है। उस वक्त मैं 7-8 साल की बच्ची थी। मेरा पूरा खानदान उस जालिम ने बर्बाद कर दिया और उसी वक्त से मैं और मेरी माँ ने अपनी जिंदगी का मकसद कबील खान की मौत को बना लिया। अगर इससे मुताल्लिक किसी को भी कोई शक हो तो मैं मोअज़्ज़िज़ जिरगे से 1-2 दिन की मोहलत तलब करती हूँ। अलाम खेल में कई ऐसे अफराद मौजूद हैं जो मेरे हक में गवाही देने पर तैयार हो जाएंगे। अचानक एक आवाज आई, अलाम खेल जाने की जरूरत नहीं है बेटी, मैं इस बात का गवाह हूँ कि कबील खान ने ये सब कुछ किया है जिसके बारे में ये बच्ची बात कर रही है। हाजरीन में बैठे हुए एक उधेड़ उम्र शख्स ने खड़े होकर फौरन पलवशा की बात की तस्दीक की। पलवशा उसे शुक्रगुजारी भरी नजरों से देखने लगी। उसके बाद भी सनोबर खान ने काफी आए बाएं शाएं की मगर हमारा मुकदमा मजबूत था। उसके हर सवाल का शाफी जवाब हमारे पास मौजूद था। हमारे मुकदमे का सबसे मजबूत पहलू पलवशा की मजलूमियत और उसके वाक़े की सच्चाई थी। पलवशा की कहानी में मेरे फौजी होने की बात भी पसे पर्दा चली गई थी। तमाम बातों के इख्तिताम पर जिरगे के अरकान कमरे में चले गए और आधे घंटे की गुफ्तशनीद के बाद बाहर आकर उन्होंने सनोबर खान के मुकदमे को बेबुनियाद करार देते हुए पलवशा के हक में फैसला साबित कर दिया। उसके साथ जिरगे ने फैसला सुना दिया कि खुशाल खान जब तक चाहे मुझे और पलवशा को अपना मेहमान बनाकर रख सकता है। सबसे आखिर में जिरगे के मशर शामिल खान ने सरदार सनोबर खान से दरखास्त की थी कि वो वशलाम गांव से पुराना मुआहिदा बहाल करते हुए इलाके के अमन में मुस्बत किरदार अदा करे और बड़ेपन का मुजाहिरा करते हुए कबील खान मरहूम से होने वाली गलती को तस्लीम करके उसके जुल्म का शिकार होने वाले अपने कबीले के अफराद को इंसाफ मुहैया करे। जिरगे का फैसला हमारे हक में हुआ था। हम दोनों बहुत खुश थे। सरदार खुशाल खान और काबिल खान भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। दोनों भाइयों ने खुलूस दिल से हमें मुबारकबाद दी। बैठक में आते ही पलवशा नम आंखों के साथ मुझसे लिपट गई। बोली, आपकी बदौलत आज मुझे ये दिन देखना नसीब हुआ। इलाके में कबील खान की बदकिरदारी खुलकर सामने आ गई। वो अपने अंजाम को पहुंचा, उसका भाई भी कत्ल हुआ और मैं सुरखरू हूँ। उसके साथ मुझे आप जैसा शरीक हयात मिला। मैं अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मैंने कहा, ठीक है जी, अल्लाह पाक का शुक्र तो इंसान को हर हाल में अदा करना चाहिए, लेकिन फिलहाल तुम वही कपड़े पहनो जो तुम्हें काबिल खान ने ला कर दिए थे। अभी लो। मुझसे अलग होते हुए वो दीवार पर टंगे कपड़ों की तरफ बढ़ी। मैंने उसकी जानिब से रुख फेर लिया। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज उभरी, अब बताएं कैसी लग रही हूँ। मैं उसकी जानिब मुड़ा। इस मर्तबा भी मुझ पर पहले वाली कैफियत तारी हो गई थी। मुझे मबहूत देखकर वो एक बार फिर शर्माने लगी। उस शोख और चंचल लड़की की शर्मीली अदाएं कुछ ज्यादा ही बासर थी। मेरी महवियत में काबिल खान की आमद से खलल पड़ रहा था। वो खाना लेकर आया था। खाने वगैरह से फारिग होकर खुशाल खान भी आ गया। दौरान गपशप उसने बड़े खुलूस से हमें अपने कबीले में शामिल होने की दावत दी, लेकिन मैंने उसका शुक्रिया अदा करते हुए नरमी से इनकार कर दिया क्योंकि ऐसा होना नामुमकिन था। मेरे साथ सिर्फ पलवशा का गम नहीं था। वो मुझे जितनी प्यारी, जितनी अजीज होती, पहला हक मेरे वतन का था। उनके जाने के बाद पलवशा मुसिर हुई कि हमें सरदार खुशाल खान की बात वक्ती तौर पर मानकर वहीं रिहाइश इख्तियार कर लेनी चाहिए। इस तरह हमारी शादी भी 1-2 दिन के अंदर हो सकती है। मैंने उसे हल्के से डांटते हुए कहा, लड़कियां अपनी शादी की बात ना तो इस बेबाकी से करती हैं और ना शादी के लिए बार बार इतनी बेचैनी जाहिर करती हैं। वो बोली, ठीक है, ना माने, पहले भी आपने कभी मेरी मानी है जो आज मानेंगे। और मुंह फुलाकर वो मेरे पास से उठकर दूसरी चारपाई पर जा लेटी। मैंने कहा, फिर खफा होने का मतलब? चंद दिन की मोहलत तो दो ना। वो मासूमाना अंदाज में चिल्लाई, चंद दिन का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, समझे? मैंने कहा, हाँ, तकरीबन इतने ही। वो बोली, मुझे लग रहा है कि आप रोज बरोज अपनी मंगेतर के रोब में आते जा रहे हैं। मैंने रोमानवी लहजे में कहा, वो शायर कहता है ना, अगर वो रूठ जाता है तो हमारी जान निकलती है। वो हसरत भरे लहजे में बोली, पता नहीं कब वो दिन आएगा जब आप थके हारे बाहर से आएंगे और मैं आपके सामने खाना रखूंगी। जब आपको पसंद नहीं आएगा तो आप मुझे डांटेंगे और मैं रोने लग जाऊंगी और आप खाना पीना भूल कर मुझे मनाएंगे और देर तक मनाते रहेंगे। उसकी आवाज मुझे कहीं दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। मैं धीमी आवाज में गुनगुनाने लगा, सोना न चांदी न कोई महल। हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के तौर पर हम दोनों हफ्ता भर काबिल खान के ही मेहमान बने रहे। गो सनोबर खान जिरगे वाले दिन ही अपना सारा लश्कर वापस ले गया था और उससे एक दिन बाद उसने खुशाल खान को अलाम खेल आने की दावत दी थी। दोनों सरदारों ने इकट्ठे खाना खाया और पुराने मुआहिदे को फिर से बहाल कर दिया था।
قابل خان بھی ساتھ ہی گیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ صنوبر خان نے ہم دونوں کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے چند دن وہیں گزارنے ضروری سمجھے، اور پھر ایک دن ہم صبح سویرے وہاں سے جانے کو تیار تھے۔ وشلام سے ہم نے ڈی بلاک جانا تھا، وہاں سے پلوشہ کو علام خیل تک چھوڑ کر آتا اور وہ علام خیل سے گاڑی میں بیٹھ کر انگور اڈے پہنچ جاتی۔ اپنی شناخت چھپانے کے لیے اس نے قابل خان سے ایک برقع منگوا لیا تھا۔ راستے کے لیے قابل خان نے ہمیں پرتکلف کھانا بنا کر دیا۔ میں نے دونوں سرداروں سے الوداعی معانقہ کیا، جبکہ پلوشہ کے سر پر دونوں نے شفقت بھرا ہاتھ پھیر کر ہمیں رخصت کر دیا۔ سردار خوشحال خان نے ہمیں چند محافظ ساتھ لے جانے کا مشورہ بھی دیا، لیکن میں نے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا۔ اسی طرح ندی نالے، گھنے درخت، جھاڑیوں کے جھنڈ، اونچی چوٹیاں، ابری ہوئی ٹیکریاں، نشیبی علاقہ اور ڈھلوانوں پر سفر کرتے رہے۔ سپہر کو موسم نے تیور بدلے اور ہمیں ایک غار میں پناہ لینا پڑی۔ سب سے پہلے تو ہم نے خشک لکڑیوں کا انبار جمع کیا اور پھر آرام کرنے لگے۔ شام کو کھانا وغیرہ کھا کر وہ مجھے آرام کرنے پر اصرار کرنے لگی۔ اس کے تئیں اگر وہ سو گئی تھی تو میں نے اسے جگانا ہی نہیں تھا۔ اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالتے ہوئے میں لیٹ گیا۔ اس دن مورچے میں تو میں نے اس کی گود میں لیٹنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اس وقت غار میں وہ اپنی منوا کر رہی۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ اس نے مجھے 12-1 بجے نہیں جگانا تھا اور وہ ساری رات اسی طرح بیٹھے بیٹھے گزار دیتی۔ لیکن ہم سنائپرز کی نیند عموماً مرضی کی تابع ہوتی ہے، نہ تو ہم اتنی گہری نیند سوتے ہیں کہ ماحول سے بے خبر ہو جائیں اور نہ ہی مسلسل نیند میں ڈوبے رہتے ہیں۔ بے شک پلوشہ بھی تربیت یافتہ تھی، لیکن اس کی تربیت اس نہج پر نہیں ہوئی تھی جس طرح ہم سنائپرز یا کمانڈوز کی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ وہ الڑ دوشیزہ بھی تھی، اور اس کی عمر کی نیند تو یوں بھی آدمی کو غافل کر دیتی ہے۔ 12:30 بجنے کو تھے جب خود بخود میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت پلوشہ بھی غار کی پتھریلی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ وہ گاہے گاہے جلتی ہوئی آگ پر لکڑی کا ٹکڑا رکھ دیتی۔ لکڑی کا ڈھیر اس کے پاس ہی پڑا تھا۔ روشن ہوتی آگ مجھے یہ باور کروانے کے لیے کافی تھی کہ وہ ہوشیار تھی۔ سلیپنگ بیگ سے باہر آتے ہی میں نے کہا، آؤ سو جاؤ۔ وہ بولی، اتنی جلدی جاگ گئے؟ میں نے کہا، قریباً 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، اس لیے چپ چاپ رضائی میں گھس جاؤ۔ اور وہ منہ چڑھاتے ہوئے سلیپنگ بیگ میں گھس گئی۔ تکیا اسے وہی ملا تھا جس کی وہ دل میں خواہش رکھتی تھی۔ چائے کا خشک راشن ہمارے پاس موجود تھا۔ صبح چائے اور رات کی بچی ہوئی روٹی سے ناشتہ کر کے ہم ایک بار پھر روانہ ہو گئے۔ دوپہر 12-1 بجے کے قریب ہم ڈی بلاک پہنچ گئے تھے۔ سنتری کو اپنی شناخت کروا کر میں نے بیرٹ M7 اور دوسرے سامان کا تھیلا وہیں چھوڑا اور صرف کلیشنکوف اور پستول لے کر پلوشہ کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اس کے پاس بھی کلوز بٹ والی کلیشنکوف اور قبیل خان سے چھینا ہوا قیمتی پستول موجود تھا۔ آگے کا سفر مسلسل اترائی پر مشتمل تھا۔ سپہر تک ہم اس جگہ پر پہنچ گئے تھے جہاں سے ہمیں عارضی طور پر الوداع ہونا تھا۔ راجو وہ سسکتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے کہا، روتی کیوں ہو؟ 2-3 دن کی بات ہے، میں بس اپنی چھٹی کروا کر پرسوں ترسوں تک انگور اڈے پہنچ جاؤں گا۔ وہ بولی، دیر نہ کر دینا۔ میں نے کہا، فکر نہ کرو اور مخابرے پر رابطہ کرو۔ روزانہ رات کے 8 بجے چینل نمبر 5 پر میں اپنی جان کی آواز سننے آؤں گا۔ اس نے منہ بسورا، اگر 3 دن سے 1 گھنٹہ بھی زیادہ لگایا تو بالکل بھی بات نہیں کروں گی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ایک فوجی کی بیوی بننے جا رہی ہو، جدائی کی عادت تو ڈالنا پڑے گی، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ وطن کے محافظ کبھی کبھی عارضی جدائی کو حشر تک موقوف کر دیتے ہیں۔ وہ بولی، بکواس نہ کرو۔ میں نے کہا، اچھا مذاق تھا، میں بس یوں گیا اور یوں آیا، ہو سکتا ہے تم سے پہلے انگور اڈے پہنچ جاؤں۔ آمین۔ اپنی آنکھوں پر الٹا ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ مجھ سے بمشکل علیحدہ ہوئی۔ کلیشنکوف گلے میں ڈال کر اس نے اوپر سفید برقع پہنا اور سامنے سے پلو اٹھا کر مجھے چاند چہرے کا آخری دیدار کروانے لگی۔ چند دن کی جدائی بھی میرا دل چیرنے جا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ اسے واپس اپنے ساتھ ڈی بلاک پر لے جاؤں اور وہاں سے چھٹی وغیرہ کروا کر اپنے ساتھ انگور اڈے لے جاؤں، یا پہلے جس طرح میں نے سیدھا انگور اڈے جانے کا سوچا تھا اس پر عمل کروں۔ لیکن پھر آرمی کے ڈسپلن کا خیال آتے ہی میں نے اس کمزور سوچ پر قابو پا لیا، اور سیدھا اگر اس کے ساتھ چلا جاتا تو چھٹی کیسے لے پاتا؟ اگر آج میں اس سے چند دن دور نہیں رہ سکتا تھا تو کل کلاں کو جب وہ میری بیوی ہوتی اور تلا گنگ میں بیٹھی ہوتی تب میں دن کیسے گزارتا؟ اپنے پیاروں سے جدائی تو یوں بھی ہم فوجیوں کا مقدر ہوتا ہے۔ کبھی سیاچن اور کارگل کی برف پوش پہاڑوں میں جہاں رگوں میں خون کی گردش جما دینے والی ٹھنڈ پڑتی ہے، وہاں اپنے پیاروں کی یادوں کا الاؤ جلا کر اس گردش کو رواں رکھتے ہیں۔ کبھی وزیرستان کی بارود اگلتی وادیوں میں اپنے لیے دعائیں کرنے والوں کے مناجات سے حوصلہ پا کر دشمن کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ کبھی سندھ کے خشک صحراؤں میں پیاس اور گرمی کا مقابلہ یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ کم از کم ہماری وجہ سے وطن عزیز کی کتنی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بھائی اور بزرگ آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ کبھی بلوچستان کے بے آب و گیاہ پہاڑیوں میں پسینہ بہاتے ہوئے دل کو وہ وقت بیت جانے کی تسلی دیتے ہوئے وقت گزار لیتے ہیں۔ یہ جدائی، یہ بچھڑنا، یہ دوریاں، یہ تڑپنا، رونا، آہیں اور سسکیاں ہم فوجیوں کا مقدر ہیں، اور اس کا بدلہ صرف اللہ کی ذات ہی دے سکتی ہے۔ تنخواہ کے نام پر موصول ہونے والے چند روپے یقیناً اس کا بدل نہیں ہو سکتے۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، جاؤ گڑیا۔ اس وقت میں خود کو بہت کمزور محسوس کر رہا تھا۔
नफी में सर को दाएं बाएं हिलाते हुए वो एक मर्तबा फिर आगे बढ़ी और मुझसे लिपट गई। मैंने कहा, कह तो दिया जल्दी आ जाऊंगा। मैंने उसे डांटने की कोशिश की मगर मेरे मुंह से फकत बेबसी भरी आवाज ही निकल सकी थी। वो बेआवाज रोती रही। मैंने कहा, पलवशे पता है ना, अगर अंगूर अड्डे वाली आखिरी गाड़ी निकल गई तो कितना मसला बनेगा तुम्हारे लिए, और यहाँ से डी ब्लॉक तक मैं भी जाने रात को किस वक्त पहुंचूंगा। क्या यही चाहती हो कि अंधेरे में ठोकरे खाता रहूं? इस मर्तबा मेरी बात का उस पर खातिर खा असर हुआ। एक झटके से मुझसे जुदा होकर उसने बुर्का चेहरे पर डाला और पीछे मुड़कर तेज कदमों से दूर जाने लगी, यूं जैसे अगर 1 सेकंड की देर हो गई तो वो जा नहीं पाएगी। मैं वहीं रुक कर उसे देखता रहा। पीछे मुड़े बगैर उसने नाला अबूर किया और फिर फरलांग भर का फासला तय करके सड़क पर चढ़ गई। मैं वहीं खड़ा उसे देखता रहा, यहाँ तक कि अलाम खेल से एक वैगन निकल कर अंगूर अड्डे की तरफ जाने लगी। उसके हाथ का इशारा पाकर वैगन उसके करीब रुकी। आखिरी मर्तबा उसने पीछे मुड़कर देखा, यूं जैसे उसे अच्छी तरह मालूम हो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, और फिर वैगन में बैठ गई। वैगन के आगे बढ़ते ही मैं थके थके अंदाज में पीछे मुड़ा और डी ब्लॉक की बुलंदियां सर करने लगा। मेरे दिलो दिमाग में उस वक्त पलवशा के बिछड़ने के अलावा कोई ख्याल जागुजी नहीं था। इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बिछड़ना ही होता है, चाहे वो जुदाई आर्जी हो या हमेशा की। दूरियां और फासले दिल में वो घाव पैदा करते हैं जिन्हें कुर्बत के मरहम ही से शिफा मिल सकती है। मैंने खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ा कर खुद को तसल्ली दी, कोई नहीं, चंद दिनों की बात है। अजीब बात थी कि माहीन, जेनिफर और रोमाना से हमेशा की जुदाई में मेरे दिल का ये हाल नहीं हुआ था जो पलवशा के आर्जी दूर जाने पर हो रहा था। कभी तो पलवशा का टकराना मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बदबख्ती लगता था कि इस टकराव की वजह से मोहब्बत जैसी बीमारी ने एक बार फिर मेरे दिल में पंजे गाड़ लिए थे, और कभी उसके मिलने पर मैं खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन आदमी समझता कि मुझे उस जैसी अलबेली दोशीजा से मोहब्बत हो गई। बिला शक व शुबा उस जैसी लड़कियां कहीं सदियों में ही जन्म लेती हैं। सिन्फ नाजुक होते हुए यूं एक जालिम और जाबिर सरदार से टकराने का हौसला पैदा करना इतना आसान काम नहीं था।